Hello students, this is the chapter of history first. How, when and where. It is interesting to know of anything's history that when, how it happened, when it happened and where it happened. So we are going to know about the first chapter of history. So let us start with a synopsis. These points we'll study in this chapter. Introduction to history. So history is the study of past events and it is much more than memorizing dates. Nothing is there. सिर्फ क्या याद करना आपको? डेट याद करनी है. In this lesson we will learn how did it happen, when did it happen and where did it happen. So what is history? History is regarding events. History is regarding places, dates, names and learning facts. These all include what? History. What is the meaning of history? हिस्ट्री इज अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. वो चेंजेस, बदलाव, अगर कुछ चीज बदलाव आया है तो वो क्या है? हिस्ट्री है. दैट इज फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. यही है हमारी हिस्ट्री. सो अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, द कास्ट सिस्टम, देयर आर 5 कास्ट सिस्टम. फर्स्ट इज द ब्राह्मण. सबसे ऊपर ब्राह्मण माना जाता है, जिनको हम मानते हैं प्रीस्ट होते हैं. वो एकेडमिक्स, उनकी पावर होती है. क्षत्रियाज, जिनको बोलते हैं वॉरियर्स, योद्धा. Vaishyas, business community. Then last Shudras, that are servants, subordinate to Vaishyas, Kshatriyas and Brahmins. And the last is the Dalit. James Renal. He was born on December 3rd, 1742 in England and died on March 29, 1830. He was the leading British geographer of his time. He constructed the first nearly accurate map of India. He joined East India Company and became Surveyor General of Bengal from 1764 to 1777. इनके बारे में जानना ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्वाइन की थी. ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी पहली इंडिया कंपनी है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में खोली थी. सो उसी को इन्होंने ज्वाइन किया था और इसके सर्वेयर जनरल बंगाल बने हुए थे वो. Let us know the East India Company, that is also known as Britannia. English company formed for the exploitation of trade with the East and Southeast Asia and India, incorporated by Royal Charter on December 31, 1600. So East India Company इंडिया में establish हो चुकी थी और इसका मेन पर्पस जो था वो क्या था? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड. हमारे इंडिया का ट्रेड बाकी सारी कंट्री से बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए. स्टार्टेड एज अ मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग बॉडी. मोनोपोली होती है मनमानी. ये ऐसी कम ट्रेडिंग करना चाहते थे ब्रिटिशर्स जिससे इनकी मनमानी चल सके, इनके ही हिसाब से सारे लोग यहाँ पे सामान खरीदें और बेचें. द कंपनी बिकेम इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एंड एक्टेड एज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म इन इंडिया फ्रॉम अर्ली 18th century टू द मिड 19th century. इस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना पूरी तरह से आप कह सकते हैं पावर यूज कर रहे थे इंडिया में. The activities of company in China in the 19th century also served as a catalyst for the expansion of British influence there. एक catalyst बोलते हैं जब किसी चीज़ में किसी चीज़ की एक्शन में स्पीड अप करना, स्पीड लाना. तो activities of company in चाइना भी ओपन हो चुकी थी 19th century, also served as a catalyst of the expansion of British rule there. चाइना में भी ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो चुका था because of these activities. You can see official of East India Company riding in an Indian procession. East India Company के जो ऑफिशियल्स होते थे, जो वहाँ के वर्कर्स होते थे, वो कैसे जो इंडियन प्रोसेशन चलता था, कोई मेला लगता था, तो कैसे वहाँ पे आते थे और कैसे वो अपने आप को शो करते थे. History is referred to a span of time. We cannot determine a specific date when British rule was started, as it happened over a span of time. Similarly, we developed a taste of drinking tea over a period of time. सी द एडवर्टीजमेंट ऑन द राइट. आप देखते रहें कि हिस्ट्री हम कुछ नहीं मानते, सिर्फ क्या है, एक डेट है, जिसको एक डेट है विद स्पैन ऑफ टाइम. ब्रिटिशर्स कब इंडिया में आए, कब वो रूल किए, एग्जैक्ट डेट नहीं पता. सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि हम गेस करते हैं कितना टाइम लगा होगा. पास्ट वर्सेस प्रेजेंट हिस्ट्री. Earlier history was associated with a string of dates. This was because history used to keep a track of battles and big events. पहले हिस्ट्री किस चीज़ की थी? सिर्फ और सिर्फ जो बैटल्स होते थे, युद्ध होते थे. आज की हिस्ट्री क्या है? एट प्रेजेंट हिस्ट्री इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट विच इंक्लूड्स हाउ एंड व्हाट. अब ये पता करते हैं कैसे और क्या.
ये चीज़ भी आज की हिस्ट्री में ऐड हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, व्हाट डिड दे प्रोड्यूस एंड ईट एटसेट्रा. आज की हिस्ट्री सिर्फ बैटल पे ही नहीं, किसी भी चीज़ में 2 क्वेश्चन और ऐड करता है, वो है हाउ और व्हाट. ये है आज की हिस्ट्री. क्वेश्चन उठता है डेट को सेट करना. क्राइटेरिया टू सेलेक्ट अ सेट ऑफ डेट्स. क्या क्राइटेरिया थी? डेट बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हेन वी अज्यूम दैट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट. Most of the history in India was written by British historians. These historians started writing with the rule of first Governor General Warren Hastings and ended with the last Viceroy Lord Mountbatten. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों आ सकता है. फर्स्ट एंड द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? वैरन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटबेटन. सो डेट, हमारे यहाँ की डेट जो स्टार्ट हुई, पहले जो हिस्ट्री लिखते थे वो हिस्टोरियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, तो उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री जो डेट थी वो चलती थी. Warren Hastings, he was the first Governor General of India in 1773. Warren Hastings was a competent, honorable and fair-setted administrator whose policies, while some controversial, decisively shaped and stabilized future Anglo-Indian relations. The controversy surrounding his administration made him the subject of impeachment and trial in Great Britain. इनकी पॉलिसीज़ ही अलग थी. इनकी पॉलिसीज़ की वजह से आज मतलब ये फार साइटेड थे, ये दूर का देखने वाले थे कि आगे क्या हो सकता है. सो इस तरह से इनकी जो पॉलिसीज थी, इनके हिसाब से एंग्लो इंडियन रिलेशंस जो बने हुए हैं आज भी बने हुए हैं. क्राइटेरिया टू पीरियडाइज. In 1817, a Scottish economist and a political philosopher named James Mill published a book, History of British India. In this book, the Indian history is divided into 3 periods: Hindu, Muslim and British. इन्होंने ही इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश करके. और बाद में जब ये छोड़ने लगे थे इंडिया को, तो इन्होंने जानते थे कि अगर इंडिया में हिंदू और मुस्लिम साथ रहेंगे तो इंडिया पे कभी ये रूल नहीं कर पाएंगे. तो जाते जाते इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लड़ा दिया. सो इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. प्रायर टू ब्रिटिश से पहले कैसे डेट फिक्स होती थी? Before Britishers took over India, there were Hindu and Muslim rulers who used to exploit India. Furthermore, India is strongly believed in caste systems, multiple religions, superstitions, etc. James Mill felt that only British rule could civilize India and teach them manners, arts and laws. देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडियंस कुछ एक्टिविटीज़ जो थी वो अनसिविलाइज्ड थी. हमारे यहाँ सती सिस्टम था, हमारे यहाँ डाउरी सिस्टम था, आज भी है, और चाइल्ड मैरिज था. तो इन सब चीज़ों को एंड करने के लिए जेम्स मिल को लगा था कि इंडियन के जो रूलर्स हैं, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुसलमान, वो इंडिया को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. तो इनको लगा कि हमारे जो एक रूल बनेगा, ब्रिटिश जो रूल बनेगा, वो इंडियंस को क्या कर सकता है? सिविलाइज कर सकता है, एक मैनरफुल बना सकता है. सो इस तरह से जेम्स मिल ने इंडियन को सिविलाइज करने की पूरी कोशिश की.